lecture I am going to explain the IR of some important metal carbonyl compound. After watching this video, student can able to resolve any type of problems or question related to metal carbonyl compound and their IR study. So first of all, we resolve a question. Which type of metal carbonyl exhibit greater stitching vibration in case of IR spectrum? Compound A is equal to and compound B is equal to इस क्वेश्चन को रिजॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले पाई बैक बॉन्डिंग के कंसेप्ट क्लियर करना होगा. अगर आप देखें वेनेडियम हेक्सा कार्बोनाइल के केस में और क्रोमियम हेक्सा कार्बोनाइल के केस में, then it is clear that chromium hexacarbonyl these two type of metal carbonyl are terminal metal carbonyl. First of all, these two type of metal carbonyl are terminal metal carbonyl. Now we move the next factor, that is pi back bonding. Pi back bonding will be decide which type of metal carbonyl will be appear at greater frequency in IR spectrum and which type of metal carbonyl will be appear at lower frequency in IR spectrum. As we know that as pi back bonding will be increase, the stitching vibration of the metal carbonyl compound will be decrease. So we can have to predict which type of metal carbonyl compound have maximum pi back bonding and which type of metal carbonyl have minimum pi back bonding. अगर आप इस केस में सेंट्रल मेटल एटम के चार्ज की बात करें तो इस केस में आपके पास सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर चार्ज 0 है, और इस केस में आपकी बात करें तो आपके पास सेंट्रल मेटल एटम के पास चार्ज 1 नेगेटिव है. अगर हम इस चार्ज जैसे ही आपके पास 1 नेगेटिव चार्ज होगा तो आपकी मेटल के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होने की वजह से द एक्सटेंट ऑफ पाई बैक डोनेशन विल बी इंक्रीज्ड. सो एज ए रिजल्ट पाई बैक बॉन्डिंग विल बी इंक्रीज. सो दिस टाइप ऑफ कंपाउंड विल बी अपेयर एट लोअर फ्रीक्वेंसी, बट इन दिस केस देयर विल बी नो नेगेटिव चार्ज. इस केस में आपके नेगेटिव चार्ज नहीं है. एज कंपेयर टू दिस कंपाउंड इट्स पाई बैक बॉन्डिंग विल बी लेस स्ट्रॉन्ग, मीन के लेस ड्यूरेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन टू pi density toward the metal carbonyl compound, so it will be appeared at higher frequency. So we can say that the higher frequency of chromium hexacarbonyl is greater than that of vanadium hexacarbonylate ion. So this is the answer of this question. So we can explain the next example in order to project the IR spectrum of metal carbonyl compound. Project
the IR spectrum of metal carbonyl compound A MnCO5 positive and second MnCO6। अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन आए कि आपने आईएस स्पेक्ट्रम इन दो कंपाउंड का प्रिडिक्ट करना है, इनको ड्रॉ करना है, एक आपके पास MnCO5 है और एक आपके पास MnCO6 है विद रिस्पेक्ट टू इन केस ऑफ मेटल कार्बोनाइल कंपाउंड, तो आपको किस तरह से प्रिडिक्ट करना होगा कि विच टाइप ऑफ मेटल कार्बोनाइल विल बी अपेयर एट विच टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि दीज आल्सो टू टाइप ऑफ मेटल कार्बोनाइल एट टर्मिनल मेटल कार्बोनाइल। नाउ वी सी द एक्सटेंट ऑफ पाई बैक बॉन्डिंग, कि हम अब यही देखेंगे कि पाई बैक बॉन्डिंग किस केस में हाई है। अगर आप देखो ये आपके पास मैंगनीज है, ये भी आपके पास मैंगनीज है, साइज ऑफ मेटल सेम है। अब आप देखें तो पाई बैक बॉन्डिंग किस केस में हाई होगी। चार्ज ऑफ सेंट्रल मेटल एटम की बात करो, अगर ये आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, ये आपके पास जीरो चार्ज है, ये आपकी मेटल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो इस केस में आपके पास लेस पाई बैक बॉन्डिंग होगी। So इस केस में less pi back bonding as compared to this. So these type of metal carbonyl will be appear at greater than 1850 centimeter inverse, while the type of metal carbonyl compound will be appear at 1850 centimeter inverse. It is confirmed from theoretical concept, so we can easily draw the IR spectrum of these two type of metal carbonyl. This is for A type of metal carbonyl. This spectrum is for B type of metal carbonyl. The IR range start from 4000 to 400 because we are dealing the mid IR spectrum. Centimeter inverse 4000 to 400 centimeter inverse. अब ये वाला आपके पास मेटल कार्बोनाइल कहाँ अपेयर होगा, ग्रेटर देन 1850। अगर ये 4000 है और ये आपके पास 2000 है, तो ये वाला मेटल कार्बोनाइल आपका 1850 से ग्रेटर होगा। ये आपके पास 1000 है, अगर आप सपोज करते हो दिस इज 1000, तो अब आपके पास ये वाली मेटल कार्बोनाइल की पीक आपकी इधर अपेयर होगी, दैट्स विल बी ग्रेटर देन 1850 बिकॉज यू डोंट नो द एग्जैक्ट वैल्यू। आप एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आपको नोन, क्योंकि आप एक्सपेरिमेंटल के बाद ही आप एग्जैक्ट वैल्यू को डिटरमाइन कर पाएंगे, तो यू कैन सिंपली से दिस टाइप ऑफ मेटल कार्बोनाइल विल बी अपेयर एट ग्रेटर देन 1850। और ये आपके पास बी टाइप का स्पेक्ट्रम कहाँ ऑब्टेन होगा, 1850 में होगा। अगर ये आपके पास 2000 है तो ये आपके कंपाउंड दिस पीक विल बी समवट अपेयर एट दिस वैल्यू, ये आपके 1850 से ग्रेटर बन जाएगी। अब ये वाला आपके पास अगर 2000 है तो ये आपकी समवट इधर पीक अपेयर होगी, ये आपके पास 1850 ऑलमोस्ट 1850 पे अपेयर होगी। तो इस तरह से आप इसका स्पेक्ट्रम भी ड्रॉ कर सकते हो। नाउ वी रिजॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। Arrange the following compounds on the base of IR stitching frequency.
अगर आप देखें आपके पास कंपाउंड्स कौन से अवेलेबल हैं, आपके पास CO, एक आपके पास फ्री कार्बोनाइल है, एक आपके पास कंपाउंड है CrCO6 और एक आपके पास BCO6। आपने इसको अरेंज करना है ऑन द बेस ऑफ इंक्रीजिंग IR फ्रीक्वेंसी। तो अगर आप देखो तो CO के केस में देयर विल बी नो पाई बैक बॉन्डिंग, so its stitching vibration will be high, and also the other factor will be involved, that is hybridization factor, so it has sp hybridization greater the s character, so its frequency will be also increased because it contain increase strength of bond length will be increased in this case, and bond uh, length will be decrease in case strength will be increase in this case। तो इस केस में आपकी सबसे मैक्सिमम IR फ्रिक्वेंसी होगी। अगर आप इन दोनों कंपाउंड्स का कंपैरिजन करो तो आपको ये 100% क्लियर है कि एक तो आपके पास मेटल का साइज डिक्रीज हो रहा है, ये आपके पास क्रोमियम है और ये आपके पास वेनेडियम है, और सेकंड आपके पास पाई बैक बॉन्डिंग इंक्रीज हो रही है। इस केस में आपके पास लेस है और इस केस में आपके पास ग्रेटर है, क्योंकि इसमें आपके पास 1 नेगेटिव चार्ज है और इस केस में आपके पास 0 चार्ज है। जैसे ही मेटल के चार्ज आपका मेटल के सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर चार्ज इंक्रीज होता है तो पाई बैक बॉन्डिंग लेस होती है, और जैसे चार्ज डिक्रीज होता है तो पाई बैक बॉन्डिंग इंक्रीज होती है। तो इस केस में आपके पास फर्स्ट ये है कि साइज का डिफरेंस, और सेकंड आपके पास क्या चीज अवेयर है कि आपके पास चार्ज ऑन द मेटल। अगर आप इन दोनों फैक्टर्स को देखें तो जैसे आपके ये साइज का स्टिचिंग वाइब्रेशन से इनवर्स रिलेशन है कि अगर आपका साइज मेटल का डिक्रीज होगा तो आपकी स्टिचिंग वाइब्रेशन हाई होगी। तो वेनेडियम आपके ट्रांजिशन मेटल में सबसे पहले आती है, क्रोमियम बाद में आती है। अगर आप देखें इस केस में कि चार्ज ऑन द सेंट्रल मेटल एटम, तो चार्ज आपके पास सेंट्रल मेटल एटम जैसे डिक्रीज होगा तो पाई बैक बॉन्डिंग मैक्सिमम होगी और आपकी स्टिचिंग वाइब्रेशन लो होगी। तो अगर चार्ज आपका इंक्रीज होगा तो आपकी पाई बैक बॉन्डिंग मिनिमम होगी और स्टिचिंग वाइब्रेशन हाई होगी। तो बाय यूजिंग दीज टू टाइप ऑफ इंपॉर्टेंट फैक्टर वी कैन डिसाइड कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस टाइप ऑफ कंपाउंड विल बी हायर देन दिस टाइप ऑफ compound। So maximum will be this and then this and then this, so we can write the adder in this way। mu frequency of free carbonyl will be greater than that of this and that of this। अगर आप इसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू देखें तो इट इज आल्सो कंफर्म दिस विल बी appear at 2143 centimeter inverse, and this IR frequency will be appear at 2094 centimeter inverse, and this type of this type of compound will be appear at 1984 centimeter inverse, and this type of compound will be appear at 1840 सेंटीमीटर इनवर्स। एक्सपेरिमेंटली ये आपके पास वैल्यूज हैं, ये IR स्पेक्ट्रम है। सो थ्योरेटिकली एंड एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर विल बी इक्वल, सो वी कैन प्रोडक्ट द IR स्पेक्ट्रम ऑफ दिस टाइप ऑफ कंपाउंड। आप किसी भी कंपाउंड के थ्योरेटिकली IR स्पेक्ट्रम को प्रोडक्ट कर सकते हो, अगर आपको वैल्यू गिवन हो तो तब भी आप IR स्पेक्ट्रम को प्रोडक्ट कर सकते हो।